All right. So today we will learn about A star. So I'm just how I will proceed this training. So I will go through the presentation. We have presentation, and after few slides, we can move practically how to use this, right? Okay. So let's start. Oh, hope you can see my presentation. You can see, right? So A star basically this is the short name of employee star. अगर आप लास्ट के वर्ड देखोगे that is A star. इसका पूरा नाम है employee star, right? So today we will go through these three questions. What is employee star? Why we require this A star? A star अगर मैं बोलूँ that means employee star के बारे में बोल रहा हूँ. So what is employee star? Why we require this software and how to use this software, right? ये तीन चीजें हमें सीखना है तो आप A star सीख जाओगे. So coming to the first question, what is A star? So employee star basically employee star is the web-based software and it will manage your end-to-end recruitment process, right? Here in WowJobs, what we do recruitment, right? For our clients, right? So recruitment, manage of all the recruitment data in Excel or Notepad or diary is difficult. So we use this software to manage entire things, recruitment things, right? So it will cover your end-to-end process means end-to-end means when we assign any requirement to you and when you start sourcing till hiring till candidate join, we do lots of activities. So this software will cover end-to-end recruitment process, right? And it is working on Salesforce platform. Salesforce is the big name in the market. Salesforce CRM आपने सुना होगा. So this is the customized tool and it is working on Salesforce platform. So why we required this software, right? So you understood, right? What is this software? So why we required this? So first of all, it is very easy accessible. You can access this software from anywhere, uh, anytime. You just required internet connection and a browser. Not only on your system, if you are outside of your system and if you have to work something, right, you can start your work. You just go like Keka, you just go put the URL, user ID and password. So you would have your all the data, right? किस किस रिक्वायरमेंट पे आप काम कर रहे हो, कौन कौन से कैंडिडेट पाइपलाइन है, कौन से कैंडिडेट किस स्टेज पे है, एवरीथिंग यू विल गेट द क्लैरिटी ओवर द सॉफ्टवेयर. You can track the progress of your requirement and candidates very easily. You will have full clarity about the data. You will have your billing clarity and all. So everything you will get, whatever you are doing in recruitment, you will have clarity and you will track, you will able to track and manage those information through this software, right? Okay, coming to how to use it, the third question, right? So third question is how to use it. So before going through this question, how to use it, we need to we need to understand the recruitment process. सॉफ्टवेयर पे क्या करते हैं, वही करते हैं जो एक्चुअल में हम करते हैं और वो सॉफ्टवेयर पे करेंगे. तो सॉफ्टवेयर हम ये सॉफ्टवेयर क्यों यूज करेंगे? फॉर रिक्रूटमेंट पर्पस, राइट, टू मैनेज आवर रिक्रूटमेंट डेटा. तो सबसे पहले समझना जरूरी है रिक्रूटमेंट होता कैसे, राइट? ये आप लोगों को शायद अभी तक पता चल गया होगा कि रिक्रूटमेंट होता कैसे है. तो बेसिकली रिक्रूटमेंट करने के लिए हमारे पास वी डू हैव टू रोल जनरली. वन इज क्लाइंट मैनेजर, अकाउंट मैनेजर जिसको कह सकते हो आप, क्लाइंट मैनेजर जो क्लाइंट को मैनेज करते हैं. एंड सेकेंड रोल इज रिक्रूटर. तो हर एवरीवन कैन नॉट मैनेज द क्लाइंट. क्लाइंट को कोई एक मैनेज करता है, बट सोर्सिंग कैन डू मल्टीपल पीपल, राइट? फॉर एग्जांपल आई एम द क्लाइंट मैनेजर, आई. तो क्लाइंट मैनेजर का क्या रोल होता है? इफ आई एम द अकाउंट मैनेजर, तो उस क्लाइंट के लिए इंटरेक्शन हम भी करेंगे. अगर रिक्वायरमेंट उनसे कोई नई रिक्वायरमेंट लेनी है या नई रिक्वायरमेंट हमने कोई डिलीवरी करनी है, तो जो क्लाइंट का इंटरेक्शन होगा वो हमारे साथ होगा. लेकिन रिक्रूटर हमारे अंडर चार पांच, जैसे आप रिक्रूटमेंट का रोल कर सकते हो, रिक्रूटर रोल. तो होता क्या है, जैसे क्लाइंट से हमने रिक्वायरमेंट लिया, हमने सॉफ्टवेयर पे डाला और फिर आपको असाइन कर दिया, मानस को असाइन कर दिया, स्निग्धा को असाइन कर दिया, संतोषी को असाइन कर दिया, तो वो फिर हो गया रिक्रूटर रोल. रिक्रूटर का रोल क्या होता है? रिक्रूटर का रोल होता है जैसे हमने आपको रिक्वायरमेंट असाइन करा, फिर आप सोर्सिंग करोगे, सोर्सिंग
चैनल मेथड अलग अलग हो सकता है, आप लिंक्डइन से सोर्सिंग कर रहे हो, नौकरी से सोर्सिंग कर रहे हो, किसी और जॉब पोर्टल से सोर्सिंग कर रहे हो। फाइनली आप कैंडिडेट से बात करोगे, यू विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जब शॉर्टलिस्ट कर लोगे तो पाइपलाइन विथ रिक्वायरमेंट। पाइपलाइन विथ रिक्वायरमेंट क्या है, उसको जिस रिक्वायरमेंट के लिए आपने सोर्स करा है उसको पाइपलाइन करना है, वहां पे मतलब टैग करना है कि हमने ये कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए सोर्स करा है। जब आप पाइपलाइन कर दोगे तो फिर हमारी रोल आ जाता है सेंड टू क्लाइंट करना, मतलब हम आपके सीवी को रिव्यू करेंगे एज एन क्लाइंट मैनेजर की ठीक सीवी आपने सोर्स करा है नहीं, फिर अगर अच्छा लगा मुझे तो हम आगे क्लाइंट को भेज देंगे। फिर क्लाइंट को भेजने के बाद क्लाइंट उसको रिव्यू करेगा। फिर क्लाइंट रिव्यू करने के बाद या तो कैंडिडेट को अच्छा नहीं लगेगा तो रिजेक्ट कर देगा या शॉर्ट लिस्ट करेगा, राइट। अगर शॉर्टलिस्ट करेगा तो फिर अगेन हमारे ऊपर आ जाती है, आपके ऊपर आ जाएगी रिक्रूटर की। जैसे क्लाइंट मैनेजर है, मैं आपने 4 कैंडिडेट आपने पाइपलाइन करे थे, 2 शॉर्टलिस्ट हो गए, 2 रिजेक्ट हो गए, तो मैं आपको बता दूंगा मानस आपके 2 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए, 2 रिजेक्ट हो गए। जो शॉर्टलिस्ट हुए, जो रिजेक्ट हो गए उनकी कहानी वहीं पे खत्म। जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको आगे आपको कराना है, आप उसके लिए आगे काम होगा कि अब मानस आप उनका मैं बताऊंगा आपको कि मानस आप उनका इंटरव्यू अरेंज करा दो। क्लाइंट ने टाइम स्लॉट दिया है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो आप उनसे फिर कोऑर्डिनेट करके इंटरव्यू अरेंज कराओगे। अगर इंटरव्यू में भी स्टेज होते हैं कि इंटरव्यू कई एक बार सेकेंड राउंड होता है, कई एक बार थर्ड राउंड होता है, फाइनली क्या होगा, या तो इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा कैंडिडेट, राइट। तो रिजेक्ट हो गया तो कैंडिडेट वहीं पे उसकी कहानी खत्म। अगर शॉर्टलिस्ट हो गया मतलब सक्सेस हो गया इंटरव्यू में तो उसको ऑफर देगा क्लाइंट। फिर ऑफर देने के बाद जो भी कैंडिडेट का जिस टाइप का प्रोफाइल है, जितना नोटिस पीरियड है 30 डेज 45 डेज, उसके बाद कैंडिडेट ज्वाइन कर जाता है। और फाइनली हम लोग इनवॉइस भेजते हैं क्लाइंट को और हमारी पेमेंट आती है। तो एक पूरा साइकिल बनता है। तो 2 टाइप के रोल समझ में आ गया कि अकाउंट मैनेजर का क्या रोल होता है। अकाउंट मैनेजर का रोल क्लाइंट कोऑर्डिनेशन का होता है। क्लाइंट से जो भी कोऑर्डिनेशन करेंगे, हर कोई क्लाइंट से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता क्योंकि क्लाइंट भी कंफ्यूज रहेगा कौन से रिक्रूटर हैं, और मल्टीपल लोग नहीं कर सकते। तो अकाउंट मैनेजर इज द डिफरेंट रोल, दैट इज द दे बेसिकली डू द कोऑर्डिनेशन विद क्लाइंट एंड वंस दे गॉट द रिक्वायरमेंट दे असाइन टू रिक्रूटर। एंड वो जो बीच का अकाउंट मैनेजर आप कह सकते हो बीच वाला रोल होता है, रिक्रूटर को भी देखना है क्लाइंट को भी देखना है और दोनों में कोऑर्डिनेशन करना है, दैट इज अकाउंट मैनेजर रोल। और रिक्रूटर का काम सोर्सिंग एंड कैंडिडेट कोऑर्डिनेशन है। क्लियर है ये वाला प्रोसेस? अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया तो एक रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस है जो हम लोग फॉलो करते हैं, और इसी के बीच सारा काम होता है। जो मैंने बताया कि हम अगर क्लाइंट मैनेजर है तो रिक्वायरमेंट खोलेंगे, आपको असाइन करेंगे, फिर आगे का काम, फिर कैंडिडेट प्रोग्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे होता रहता है। यही रिक्रूटमेंट है। कोई क्वेश्चन है इस वाले स्लाइड में आप लोगों को? पक्का? ओके, सो लेट्स मूव हाउ टू यूज इट, दिस सॉफ्टवेयर। तो हम प्रैक्टिकली चलते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करेंगे, राइट। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। So this is my screen, browser actually, and this is the actual I mean software for client manager। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है क्लाइंट मैनेजर यूज करते हैं। आप लोगों का इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है। तो अकाउंट मैनेजर कैसे करते हैं, हम यहाँ पे पहला काम करेंगे कि अकाउंट मैनेजर क्या करते हैं। अकाउंट मैनेजर सबसे पहला वो रोल खोलेंगे। किसी जैसे मैं कोई क्लाइंट मैनेज कर रहा हूँ, उससे कोई नई रिक्वायरमेंट आई तो हम यहाँ पे न्यू रिक्वायरमेंट खोलेंगे और एज ए रिक्रूटर आपको असाइन करेंगे, राइट। तो रिक्वायरमेंट कैसे खोलेंगे, देखिए अकाउंट मैनेजर। तो आपको रिक्वायरमेंट का टैब समझ में आ जाएगा बेसिकली। जैसे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट पे जाएंगे, मान लीजिए हम अकाउंट मैनेजर हैं, तो रिक्वायरमेंट कैसे खोलेंगे, यहाँ पे न्यू रिक्वायरमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट बना देंगे जो भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आया है। रिक्वायरमेंट जैसे मान लीजिए इंटर्न ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ये मैं ऐसी डमी रिक्वायरमेंट बना रहा हूँ। ओरिजिनल केस में अगर आप आईटी रिक्रूटर हैं तो हो सकता है जावा डेवलपर हो, अगर आप नॉन आईटी रिक्रूटर हो तो हो सकता है सेल्स मैनेजर हो। इस टाइप के टाइटल जो रिक्वायरमेंट का टाइटल होगा। अगर कोई ड्राइव पोजीशन है तो हम चेक कर देंगे, नहीं तो अगर ड्राइव नहीं है तो अनचेक कर देंगे। तो ये ड्राइव समझते हैं आप लोग? ड्राइव क्या होता है? ड्राइव होता है कि क्लाइंट एक दिन ड्राइव का डेट देता है कि इस दिन हम सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे, आप लाइन अप कर दो जितने भी कैंडिडेट हैं, और आप उस दिन इंटरव्यू के लिए भेज दो। बाय डिफॉल्ट उसमें कोई शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट
आप क्लाइंट के पहले प्लेस पे कैंडिडेट को भेज दो और वहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा उसका, और शॉर्टलिस्ट रिजेक्ट वहीं पे, तो उसको बोलते हैं ड्राइव। अब यहाँ पे अकाउंट किस क्लाइंट के लिए है, यहाँ पे मैं डालूंगा मैं देखता हूँ कोई टेस्ट क्लाइंट है, जैसे XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक टेस्ट क्लाइंट है, मैं उसके लिए डाल रहा हूँ। क्लाइंट स्पोक यहाँ पे देख लेता हूँ कोई है, नहीं है, पता नहीं। टेस्ट करके कोई अकाउंट बना हुआ है, टेस्ट। जैसे मैंने एक टेस्ट क्लाइंट पकड़ लिया, और यहाँ पे क्लाइंट स्पोक सिलेक्ट करना होता है कि उस क्लाइंट से हम किससे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज द क्लाइंट स्पोक, ये मैंने अपना नाम डाला हुआ है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। वर्क लोकेशन यहाँ पे डालेंगे कि इस लोकेशन में रिक्वायरमेंट है, से एग्जांपल देहरादून। डाइवर्सिटी पोजीशन क्या होता है, अगर क्लाइंट को कई एक बार फीमेल कैंडिडेट ही चाहिए तो यहाँ पे हम चेक कर देते हैं, तो डाइवर्सिटी मतलब सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही चाहिए क्लाइंट को, तो उस केस में हम डाइवर्सिटी को चेक करते हैं। पोजीशन इंडिकेट करता है कि कितने ओपनिंग है, मान लीजिए यहाँ पे 2 ओपनिंग है। ओपनिंग मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए कोई सेल्स मैनेजर है, वहाँ पे 2 ओपनिंग है सेल्स मैनेजर की, तो पोजीशन यहाँ 2। तो ये ज्यादा या कम हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, डिपेंड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट अभी ओपन कर रहे हैं तो ओपन रहेगा। एक्सपीरियंस क्लाइंट को क्या चाहिए, जैसे 2 मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 4 ईयर, तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस इंडिकेट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस एक्सपीरियंस का कैंडिडेट आपको खोजना है। प्रायोरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को आपको हाई लेवल प्रायोरिटी पे करना है, मीडियम या लो, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिक्रूटर असाइन करते हैं, यहाँ से रिक्रूटर असाइन करते हैं, तो ये है आप लोगों का नाम यहाँ पे आएगा, नेटवर्क यूजर। इसमें आप लोगों का आईडी बना ही नहीं है अभी, तो आएगा नहीं। चलो नेटवर्क यूजर में जैसे आपका नाम यहाँ पे आएगा, हम आपको असाइन कर देंगे, तो आपको ये रिक्वायरमेंट की जॉब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। इंडस्ट्री यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को किस इंडस्ट्री में डालना है, मतलब किस इंडस्ट्री में फॉल करता है, जैसे सेल्स है, मान लीजिए बैंकिंग है, या इंडस्ट्री आप लोग समझते होगे, राइट। तो ये सारे डिपेंड ऑन कंपनी की किस इंडस्ट्री की कंपनी है, FMCG, गेमिंग, हेल्थ केयर एंड फिटनेस, तो सेल्स रोल सारे इंडस्ट्री में ही होती है, तो डिपेंड ऑन इंडस्ट्री की किस इंडस्ट्री में हो सेल्स मैनेजर चाहिए, तो यहाँ पे हम इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, करते हैं। यहाँ पे जॉब कैटेगरी की प्रोफाइल क्या है, जैसे अकाउंट फिनांस का चाहिए, फाइनेंशियल सर्विस है, जॉब रोल किस टाइप का जॉब रोल है, HR, रिक्रूटमेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, साइट, IT, एक काफी सारे बने हुए हैं जॉब रोल, तो यहाँ पे वो जॉब रोल सिलेक्ट करते हैं, जैसे रिटेल और होलसेल हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे JDO डालते हैं, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन में JD डालते हैं। जैसे ये टेस्ट ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो यहाँ पे वो कंप्लीट JD रहेगा उनका। जैसे आप किसी जॉब का JD देखे हो आप, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्लाइंट एक प्रॉपर फॉर्मेट में JD देता है कि जैसे ग्रेजुएट मस्ट, गुड कम्युनिकेशन स्किल, एडिशन। मैं फिलहाल वैसे ही डाल देता हूँ थोड़ा सा, क्लाइंट कैन ऑफर से एग्जांपल 3 to 5 लाख, तो आपको एक बजट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अकाउंट मैनेजर बिल रेट डाल देते हैं कि किस परसेंट पे हमारा साइन अप है क्लाइंट के साथ, और नीचे क्लैरिटी ऑन मैंडेट होता है, जो बेसिकली रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, टीम साइज, जो रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल्ड होता है। जनरली ये लोग कम भरते हैं, ऑल्दो हमने इम्प्लीमेंट के टाइम में ये बनाया हुआ था कि लोग भरे, बट अकाउंट मैनेजर कम भरते हैं। यहाँ पे JD मिल जाएगा आपको, इंडस्ट्री मिल जाएगा, जॉब कैटेगरी मिल जाएगा, और फाइनली वो रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देते हैं रिक्रूटर को असाइन करके। अभी फिलहाल मैं सेव कर रहा हूँ। अच्छा, अकाउंट मैनेजर इज मिसिंग, तो हमें अपना नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा एज एन अकाउंट मैनेजर, और सेव कर देंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे रिक्वायरमेंट हमारा यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, और जिनको भी जिस रिक्रूटर को असाइन करेंगे, सपोज मैंने ये रिक्वायरमेंट पोस्ट करा और मानस को दे दिया कि मानस इस पे काम करेंगे, तो
व्हाट विल हैपन, जैसे हमने मानस को असाइन करा तो मानस विल गेट वन ईमेल ओवर द ईमेल, यू विल गेट वन ईमेल कि उसका सब्जेक्ट लाइन रहेगा जॉब एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपको नया जॉब मिला है, नया रिक्वायरमेंट मिला है काम करने के लिए। तो एक तो था फर्स्ट इंटीमेशन कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता है, तो वो आपको आउटलुक पे मिल जाएगा। सेकंड, जब आप अपने सिस्टम पे लॉगिन करेंगे सॉफ्टवेयर पे तो आपको रिक्वायरमेंट वहाँ पे विजिबल होगा। अब मैं किसी रिक्रूटर के आईडी से लॉगिन करता हूँ कि कैसे रिक्वायरमेंट विजिबल होता है। जैसे मैं एक कोई रिक्रूटर जो आपके मतलब जो ए स्टार यूज करते हैं उनका आईडी मैं यूज करने जा रहा हूँ। जैसे अलीसा शर्मा एक रिक्रूटर है, मैं अलीसा का आईडी से लॉगिन करूंगा, ये बहुत जॉब्स में ही है, आपके साथ ही बैठते होंगे आई गेस, अलीसा बैठती है वहाँ पे, नहीं बैठती? ओके, तो अलीसा का मैं आईडी यूज करूंगा फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। तो जैसा आ जाए मेंशन कि इट्स ए बेस्ट सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे एक लिंक होगा, आई विल शेयर योर यूजर आईडी पासवर्ड, और लिंक हम आपको बाद में भेज देंगे। तो आपको ये लिंक आप जब जैसे ही आप अपने क्रोम ब्राउजर पे आप ओपन करेंगे तो आपको ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। मैं फिलहाल इस यूजर का अलीसा का यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूज करने जा रहा हूँ। से एग्जांपल यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग इन, यहाँ पे डालने के बाद हम आप साइन इन करेंगे। तो मतलब आफ्टर द ट्रेनिंग आई विल शेयर यू द यूआरएल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, एंड यू हैव टू साइन इन। व्हेन यू साइन इन यू विल एबल टू लॉग इन ऑन द सॉफ्टवेयर। ये आपका इस तरह से लुक एंड फील होगा, राइट? यहाँ पे देखिए, ये आपका सॉफ्टवेयर होगा जिस पे आप काम करेंगे, ये ए स्टार है आपके लुक एंड फील के लिए। इसमें क्या क्या टैब है, जो भी वर्किंग टैब्स है सारे टैब्स ऑन टॉप है, बड़ा इजी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट है, रिक्वायरमेंट है, पाइपलाइन, इंटरव्यू है, सारे हम जो काम करेंगे तो हम एक एक करके चलेंगे, आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे हम कोई रिक्वायरमेंट असाइन करेंगे आपको, रिक्वायरमेंट आपको मेल पे आ जाएगा, प्लस वो रिक्वायरमेंट वाले टैब में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कोई रिक्वायरमेंट असाइन हुआ है। जैसे अगर मैं अलीशा का बात करूं तो अलीशा को ये सारे रिक्वायरमेंट है जिस पे वो काम कर रही है, ये उसके लिए एक्टिव रिक्वायरमेंट है। ये 4 रिक्वायरमेंट है जो उसको असाइन है, उस पे काम कर रही है। इसमें आपको मेन पेज पे आपको समरी दिख जाएगा, जैसे रिक्वायरमेंट आईडी। रिक्वायरमेंट आईडी इज नथिंग बट जब हम पोस्ट करते हैं तो एक सिस्टम एक रिक्वायरमेंट आईडी जनरेट करता है, तो वही रिक्वायरमेंट आईडी होता है। जैसे अभी हमने एक रिक्वायरमेंट डाला तो रिक्वायरमेंट आईडी ये सिस्टम ने बना दिया, जैसे देखिए इंटर्न ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट JB 20354। तो 20354 ये रिक्वायरमेंट आईडी सिस्टम ने एक सीरीज बना के देता है, तो जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस के लिए होता है, सर्च वर्च करने के लिए। ये सिस्टम जनरेटेड यूनिक कोड होता है बेसिकली। देन यू विल गेट द रिक्वायरमेंट टाइटल, क्लाइंट किस क्लाइंट के लिए रिक्वायरमेंट है, हु ऑल आर वर्किंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसे सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। जैसे इस रिक्वायरमेंट पे इन्होंने अपनी टीम को सारे लोगों को दे रखा है, हर्षित, दीक्षा, यासिका, अलीसा, रुचि, अविनाश एंड ऑल। कब ये रिक्वायरमेंट पोस्ट हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये तो था ये बेसिक व्यू, मतलब यहाँ से आप रिक्वायरमेंट का डिटेल्स देख सकते हैं मेन पेज पे। यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट के अंदर आपको दो बकेट मिल जाएगा, एक्टिव रिक्वायरमेंट एंड इनएक्टिव रिक्वायरमेंट। एक्टिव और इनएक्टिव में क्या फर्क है, जैसे रिक्वायरमेंट अभी ओपन है, इसका स्टेटस बेसिकली एक्टिव और इनएक्टिव स्टेटस के ऊपर काम करता है। जैसे हम रिक्वायरमेंट को पोस्ट कर रहे थे एज एन अकाउंट मैनेजर, इसको हमने अभी पोस्ट करा तो यहाँ पे हमने ओपन डाला तो ये एक्टिव है। अगर मान लीजिए कल कोई रिक्वायरमेंट ऑन होल्ड हो जाता है या क्लाइंट क्लोज कर देता है, तो इसको अगर हम क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, दैट मीन्स आपको इसके बाद नहीं काम करना है। तो जैसे रिक्वायरमेंट क्लोज होगा तो आपके रिक्वायरमेंट जो है इनएक्टिव में आ जाएगा। इनएक्टिव में आने का मतलब है कि आपको उस पर काम नहीं करना है। तो अभी अभी अलीसा के आईडी में कोई इनएक्टिव रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 ही है जो एक्टिव है। तो इनएक्टिव में अगर कोई रिक्वायरमेंट चला जाता है दैट मीन उस पर कोई नई सोर्सिंग नहीं करना है। एक सेकंड के लिए दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। तो एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब समझ गए आप लोग? आप लोग अनम्यूट रहिए, इंटरेक्ट रहिएगा, हाँ ना यस नो, तो ज्यादा मजा आएगा। एक्टिव इनएक्टिव का मतलब समझ गए आप लोग कि क्या है रिक्वायरमेंट में? यस सर। इनएक्टिव रिक्वायरमेंट है, अगर कोई रिक्वायरमेंट इनएक्टिव में दिख रहा है दैट मीन्स यू यू वुड नॉट रिक्वायर्ड टू डू फ्रेश सोर्सिंग, राइट?
ओके, अब एज ए रिक्रूटर आपको जैसे रिक्वायरमेंट दिख रहा है, आपको इसका डिटेल्स देखना है, तो डिटेल्स देखने के लिए देखिए क्लिकेबल है रिक्वायरमेंट आईडी, यू हैव टू क्लिक ऑन द रिक्वायरमेंट आईडी। जैसे इक्विटी डीलर का कोई पोजीशन मिला आपको, तो हाउ टू सी द डिटेल्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, तो यू हैव टू क्लिक ऑन द रिक्वायरमेंट आईडी। तो आप व्हेन यू क्लिक हियर ऑन द रिक्वायरमेंट आईडी, तो ये इट विल ओपन लाइक दिस, वो पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। तो वो वही डिटेल्स खुलेगा जो हमने वहां पे फिल किया, अभी फिल करते वक्त बताया था। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको जॉब आईडी दिख जाएगा, टाइटल, क्लाइंट नेम, नंबर ऑफ पोजीशन की कितने, ये तो मैंने आपको बताया है। हु इज द अकाउंट मैनेजर, वर्क लोकेशन कहाँ है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए क्लाइंट को, 8 ईयर, राइट। तो ये सारे डिटेल्स बेसिक इन्फॉर्मेशन में दिख जाएगा। जेडी में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि डीलिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, अपडेट क्लाइंट फॉर ऑर्डर एंड ट्रेड ऑन रिकॉर्डेड client during market hour, maintain 0% billing error, maintain active clients as per the defined norms. So these are the job description which required by the client, right? Billing information में आपको सिटी से मिल जाएगा, what client can offer 3 to 5 लाख। यहाँ पे बिल रेट मिल जाएगा कि 8.33% पे बिल रेट है। टेंटेटिव वैल्यू बेसिकली वर्क्स ऑन, ये जो 3 लाख है मिनिमम सीटीसी पे। एक टेंटेटिव मतलब होता है कि ये आपको आइडिया देता है कि अगर हम इन पोजीशन को क्लोज कर देंगे तो हमारे को कितना रेवेन्यू आएगा। तो ये टेंटेटिव वैल्यू होता है, तो ये इसके बेस पे काम करता है। मिनिमम सीटीसी इंटू बिल रेट, जैसे 3 लाख का 8.33%, और जितने भी ओपनिंग है, जैसे इसमें 5 ओपनिंग है, इंटू 5। तो अगर हम ये पांचों पोजीशन को क्लोज कर देते हैं तो बेसिकली ये हमारे को 1.24 लाख का बिलिंग वैल्यू है। अगर पांचों पोजीशन क्लोज कर देते हैं तो इतना क्लाइंट से मिनिमम तो हम अर्न कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज टेंटेटिव रेवेन्यू। पाइपलाइन, यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट पाइपलाइन होगा तो आपको दिख जाएगा, और आपके खुद के भी पाइपलाइन होंगे तो यहाँ पे दिख जाएंगे, और अगर कोई इंटरव्यू पे होगा तो इंटरव्यू में दिख जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली, दिस विल गिव यू द आइडिया अबाउट द रिक्वायरमेंट। ये चीज समझना जरूरी है। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को कि रिक्वायरमेंट समझने में कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट मिलता है तो? तानिया, स्निग्धा, क्लियर? क्योंकि दिस इज No, वन ऑफ द don't have any इम्पोर्टेंट पार्ट। query. ओके, तो अब आपको रिक्वायरमेंट मिल गया इक्विटी डीलर का, आपने रिक्वायरमेंट समझ लिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से पूछ सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आया है, ये क्वेश्चन है, या कोई डाउट हो कि किस टाइप का कैंडिडेट सोर्स करना है, तो यू कैन स्पीक, ऑलवेज स्पीक विथ योर अकाउंट मैनेजर एंड गेट द क्लैरिटी अबाउट द रिक्वायरमेंट। So once you get the clarity about the requirement, what you will do, you will start sourcing, right? So sourcing, I already told कि sourcing method could be different. We have Naukri portal, you always have LinkedIn जहाँ से आप सोर्स कर सकते हो, right? तो आप नौकरी पे जाओगे, सीवी निकालोगे, राइट, कैंडिडेट से बात करोगे। इफ कैंडिडेट बोलेगा हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ फॉर दिस रोल, उसको रोल समझाओगे, बात करोगे। ओ, तो अगर सब कुछ मैच कर जाता है, आपने जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, तो उस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे क्रिएट करना है और यहाँ पे आगे पाइपलाइन करना है। तो दैट इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप। तो मैं एक क्विकली नौकरी से एक रिज्यूमे निकाल लेता हूँ, फ्रेश रिज्यूमे जो सिस्टम पे ना हो। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, सेट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू पुल आउट वन रिज्यूमे, तो आपको लाइव ही बता देंगे हम। 246222, 246222। अब जैसे आपको एक रेस्टेक्स रिज्यूमे ऐसे ही करते हो, आप लोगों को नौकरी आता है, किन किन लोगों को नौकरी आता है चलाना? सर अभी थोड़ा बहुत ही यूज किया हमने, 1 2 दिन बस। अच्छा, थोड़ा बहुत यूज किया आपने, कोई बात नहीं। नौकरी पे नौकरी क्या होता है, जॉब पोर्टल है। इसमें हर एक कैंडिडेट अपना अपना सीवी रजिस्टर करता है, आप लोग भी करे होंगे। आप लोगों ने नौकरी पे अपना रिज्यूमे रजिस्टर करा है? यस सर। ओके, हाँ। तो आप लोग जैसे जॉब सीकर, जॉब ढूंढने वाले नौकरी पर रिज्यूमे करते हैं, हम लोग एम्प्लॉयर हैं, हम लोग नौकरी से आईडी खरीद के उन रिज्यूमो को यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग और कॉल करते हैं उनको। आपके पास भी वैसी कॉल आता होगा जैसे आप कंसल्टेंट करते हो किसी को, ठीक है। तो जैसे मैं इसी के अकॉर्डिंग प्रोफाइल ढूंढ लेता हूँ। इक्विटी डीलर चाहिए, 1 to 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और दिल्ली लोकेशन, नोएडा लोकेशन में जनरली। तो मैं एक क्विकली सर्च कर लेता हूँ, इक्विटी। इक्विटी डीलर इज बेसिकली सेल्स, इक्विटी सेल्स,
मैंने 2 की स्किल्स डाल दिए हैं, और अगर आप डालना चाहो तो नौकरी विल सजेस्ट कि आपको ये चाहिए, 1 से 1 to 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी 3 to 5 है तो 3 to 4 डाल देते हैं ताकि 5 में कैंडिडेट ज्वाइन कर ले। मैं नौकरी सिखा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू सर्च कैंडिडेट। जैसे सारे कैंडिडेट आ गए, 2 2 3 8 कैंडिडेट। अब जैसे हमारे पास ये सोनू ज्योतिष का कैंडिडेट आया पहला, आई विल क्लिक हेयर, आई विल कॉल दिस सोनू ज्योतिष। क्या क्या करता है उसका रिज्यूमे हम यहाँ से नीचे, यहाँ पे रिज्यूमे दिख जाता है, ट्रेड इन इक्विटी एंड एफएनओ ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो अब मान लीजिए आई हैव शॉर्टलिस्टेड दिस कैंडिडेट, तो इसका रिज्यूमे हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे। ये रिज्यूमे हमारे डाउनलोड में आ गए फोल्डर में, राइट। तो अब इस रिज्यूमे को प्रोसेस कैसे करेंगे? प्रोसेस करने के लिए सिंपल है, हम अपने सॉफ्टवेयर पे आएंगे। तो अब मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे बात करोगे आप कैंडिडेट से, कैसे उसको रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करोगे, ये आपका काम है, राइट। सॉफ्टवेयर पे कैसे ट्रीट करेंगे ये हमारा काम है बताना। So, what you have to do, you have say suppose you have shortlisted this candidate for this position, equity dealership, right? Candidate is interested. Now you have to process this candidate on the software for tracking purpose. So how to do it? So you will come on the software. You would have option called new candidate. ऊपर top में देखो new candidate का option आ रहा होगा. Click on new candidate. तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलता है, रन रिज्यूमे पार्सर और न्यू कैंडिडेट क्रिएट करने के लिए। हमने जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करा है उसको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो फर्स्ट वे इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू चूज द फाइल। जैसे हमने सोनू ज्योतिष का फाइल सेलेक्ट करा, आई हैव सिलेक्टेड इट फ्रॉम माय डाउनलोड एंड क्लिक ऑन रन रिज्यूमे पार्सर। तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट कैप्चरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिज्यूमे, और वो आपका रिज्यूमे 10 से 15 सेकंड में पार्स करके दे देगा, क्रिएट करके। यू डोंट नीड टू डू मोर एफर्ट, राइट। So just wait for 10 seconds and system will parse your resume. Now you can see relegare इसने गलत इंफॉर्मेशन कैप्चर किया है। अगर फर्स्ट नेम देखो तो रेलीगेयर इसने कैप्चर करा है, ऑल्दो सिस्टम हैज कैप्चर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, करंट वर्किंग कंपनी, ये रेलीगेयर ही यहाँ से कैप्चर कर लिया है। तो यू नीड टू चेक ऑल अबाउट दिस इक्विटी डीलर स्किल्स। बाकी चीजें इन्होंने सही कैप्चर करा है सिस्टम ने, बट नेम गलत कैप्चर करा है, तो वी हैव टू रेक्टिफाई इट। मतलब अगर सी पार्सर इज समथिंग कि दिस इज मशीन, राइट, और मशीन को हमने समझाया हुआ है इन लैंग्वेज कि आपको यहाँ पे कोई चीज दिखे ऊपर टॉप में 2 वर्ड का, तो समझो नेम है, तो उसको एक एल्गोरिथम समझाया हुआ है हमने। तो सिस्टम को कई बार नहीं पता चलता उस मशीन को, तो उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में गलत कैप्चर कर लिया। तो यू हैव टू रेक्टिफाई इट। हाउ यू कैन रेक्टिफाई इट? जैसे मैंने रिज्यूमे डाउनलोड किया था, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द रिज्यूमे which I just downloaded. So his name is, correct name is Sonu Jyotish. तो I'll correct it. करेक्ट कैसे करना है? यहाँ पे देखो एडिट बटन है, जो पेंसिल आइकन है ना, दिस इज द एडिट बटन एंड यू कैन करेक्ट द इंफॉर्मेशन एनी टाइम। क्लिक ऑन एडिट बटन, तो ये पूरा एक फॉर्म खुल जाएगा एंड यू कैन रेक्टिफाई द इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे सोर्स कर रहे हो आप, तो यहाँ पे कहाँ से कर, नौकरी से। इसका नाम करेक्ट नाम था सोनू, और ज्योतिष इसका सेकंड नाम था। अल्टरनेट कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो हमें फिल करने पड़ जाते हैं अगर हम रेक्टिफाई करते हैं। जैसे मेल कैंडिडेट है, लोकेशन अगर मैं देखूं इस कैंडिडेट का, तो लोकेशन इज सेठी कॉलोनी अजमेर, ही इज इन अजमेर, एंड डेट ऑफ बर्थ हैज नॉट मेंशन्ड हिज डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो लोकेशन इज अजमेर, यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं मिलता है तो आप कैंडिडेट से पूछना, अगर कैंडिडेट फिर भी नहीं है तो आप 1/1/2000 डाल देना डिफॉल्ट। और बाकी इन्होंने कैप्चर कर लिया है। नोटिस पीरियड, ऑब्वियसली व्हेन यू स्पीक विद कैंडिडेट, कैंडिडेट विल टेल अबाउट द नोटिस पीरियड कि कितने दिन का नोटिस पीरियड है। यू नीड टू सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। सीटीसी और एक्सपेक्टेड सीटीसी डालना है कि कैंडिडेट का अभी सीटीसी क्या है और एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है। मान लीजिए अभी कैंडिडेट इज गेटिंग 3 लाख एंड एक्सपेक्टिंग 4 लाख, तो यू विल पुट लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ नंबर ही डालना है। कुछ लोग ऐसे डाल देते हैं 3L या LAC, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू पुट द नंबर
एंड फाइनली यू हैव ऑप्शन, यहाँ पे देखो ऊपर में ही टॉप में सेव और कैंसिल का ये जो आइकन आ रहा है, तो बेसिकली दिस इज सेव आइकन एंड दिस इज कैंसिल आइकन। आइकन जो एक फॉर्म में जनरली होता है, तो यू नीड टू सेव इट। तो अपडेटेड सक्सेसफुली, इसका नाम वाम देखो अपडेट हो गया सब कुछ। तो विद इन ए मिनट यू विल एबल टू क्रिएट द कैंडिडेट, और वंस यू क्रिएट द कैंडिडेट यू हैव टू पाइपलाइन द कैंडिडेट। क्योंकि अभी कैंडिडेट हमने क्रिएट करा, देखो ऑल्दो यू हैव ऑप्शन टू पाइपलाइन, जैसे यहाँ पे आपके सारे यही जैसे कैंडिडेट का ये पेज है, अभी फर्स्ट पेज ये जो रिजल्ट हमें दिया था, हमने यहाँ पे सिर्फ उसको करेक्ट करा है मॉडिफाई करके। नाउ यू हैव टू पाइपलाइन की किस रिक्वायरमेंट, आपके पास 4 रिक्वायरमेंट है, इक्विटी ब्रोकिंग, इक्विटी डीलर, एसोसिएट, कस्टमर सर्विस। अब इस कैंडिडेट को किसके लिए आपने सोर्स करा है वो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा ना, ताकि अकाउंट मैनेजर को भी पता चले कि आपने इस कैंडिडेट को इस रिक्वायरमेंट के लिए सोर्स करा है। तो रिक्वायरमेंट के साथ टैगिंग योर कैंडिडेट इज कॉल्ड पाइपलाइन। आपको पाइपलाइन करना है, जैसे इक्विटी ब्रोकिंग के लिए हमने सोर्स करा है ऐड कैंडिडेट टू रिक्वायरमेंट। तो जैसे ऐड कैंडिडेट टू रिक्वायरमेंट करोगे आपका पाइपलाइन हो गया। अब देखो क्या क्या इम्पैक्ट आया होगा यहाँ पे। मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। एक तो कैंडिडेट में आपका एक कैंडिडेट डेटाबेस में आ गया, सोनू ज्योतिष। तो आप जितने भी कैंडिडेट क्रिएट करोगे, वो कैंडिडेट के अंदर माई कैंडिडेट करके टैब है, माई कैंडिडेट में आपके खुद के कैंडिडेट क्रिएटेड कैंडिडेट यहाँ पे आ गए। जैसे आई जस्ट क्रिएटेड सोनू ज्योतिष, तो यहाँ पे आ गया सोनू ज्योतिष। पाइपलाइन, थर्ड टाइप इज पाइपलाइन। पाइपलाइन ही क्या है कि जो भी कैंडिडेट आप पाइपलाइन करते हो, मतलब रिक्वायरमेंट के साथ ऐड करते हो, ये आपका खुद का पाइपलाइन होता है। दैट इज ए सेपरेट टाइप कॉल्ड पाइपलाइन। यहाँ पे आप अपने पाइपलाइन कैंडिडेट की ट्रैकिंग इजिली कर सकते हो। दिस इज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप पाइपलाइन जिसको आपको मैनेज करना है। तो पाइपलाइन में देखो, जैसे हमने सोनू ज्योतिष को पाइपलाइन करा, तो वेन यू पाइपलाइन एट द फर्स्ट टाइम, उसका स्टेज रहेगा। एक स्टेज होता है बेसिकली, स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेज क्या होता है, कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए, कौन सा रिजेक्ट हुए, कौन से क्लाइंट के पास है, कौन सा इंटरव्यू पे। तो स्टेज से ही हमें पता चलता है कि कैंडिडेट का करंट स्टेज क्या है, राइट। तो पाइपलाइन के अंदर आपको स्टेज दिख जाता है आपके पाइपलाइन कैंडिडेट का। जैसे अभी जैसे हमने पाइपलाइन करा, एडेड टू पाइपलाइन। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई कैंडिडेट को आप पाइपलाइन करोगे, इमीडिएटली अकाउंट मैनेजर को नोटिफाई कर देगा ओवर द ईमेल कि सोनिया ने पाइपलाइन करा है कैंडिडेट फॉर दिस रिक्वायरमेंट। तो अकाउंट मैनेजर के पास ईमेल चला जाएगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली, आपको भेजने की जरूरत नहीं है कि यू हैव पाइपलाइन वन कैंडिडेट। सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सेंड द इन्फॉर्मेशन टू अकाउंट मैनेजर, राइट। नाउ अकाउंट मैनेजर, सपोज आई एम द अकाउंट मैनेजर, मैं क्या करूंगा, अब मेरा काम है इसको आगे कैंडिडेट को रिव्यू करके क्लाइंट के पास भेजना, राइट। तो क्लाइंट के पास भेजने के लिए हमारे पास सिस्टम में ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं यही जॉब खोल लेता हूँ, जेबी, जैसे JB 18559। अब मैं अकाउंट मैनेजर हूँ, मान लीजिए इस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इस जॉब पे जाऊंगा। मैं इस जॉब पे जाऊंगा, आई विल ओपन द जॉब। अब यहाँ कंसोल में मुझे कैंडिडेट मिल जाएगा, सोनू ज्योतिष। आई जस्ट पाइपलाइन अलीसा पाइपलाइन, मैं अलीसा के आईडी से हमने यूज किया, तो यहाँ पे मुझे पाइपलाइन दिख गया। अब एज एन अकाउंट मैनेजर यहीं से मैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है सबमिट टू क्लाइंट स्कोप, मैं क्लाइंट को भेज दूंगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लाइंट का आईडी वगैरह सब कुछ आ जाता है, और सेंड मेल मुझे करना है, हम सेंड कर देंगे। जैसे ही हम सेंड करेंगे क्लाइंट को, आपका स्टेज ए एडेड टू पाइपलाइन से सेंड टू क्लाइंट हो जाएगा। अब सपोज मैं यहाँ से कर देता हूँ सेंड टू क्लाइंट। अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं, आई एम ऑथोराइज टू आइदर सेंड टू क्लाइंट करने के लिए, या मुझे अगर कैंडिडेट पसंद नहीं आया तो अकाउंट मैनेजर रिजेक्टेड, मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ कि ये कैंडिडेट भेजने लायक नहीं है, अच्छा कैंडिडेट नहीं है, राइट। तो जो भी करूंगा, जैसे अकाउंट मैनेजर रिजेक्टेड कर सकता हूँ, या सेंड टू क्लाइंट करूंगा, अपडेट स्टेज करूंगा, तो यहाँ पे एक कैंडिडेट आगे जंप हो जाएगा, उसका स्टेज भी सेंड टू क्लाइंट हो जाएगा। और जिसने भी पाइपलाइन कराया, सपोज आपने पाइपलाइन कराया, तो आपके पास एक मेल आ जाएगा नोटिफिकेशन कि आपका एक कैंडिडेट क्लाइंट को भेज दिया गया है। जब आप सिस्टम पे आओगे, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, जब आप सिस्टम पे आओगे और अपने पाइपलाइन पे देखोगे, तो इसका स्टेज चेंज हुआ मिलेगा। देखो ऑटोमेटिकली सोनू ज्योतिष का स्टेज इज सेंड टू क्लाइंट, मतलब एक क्लाइंट को चला गया है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझिए, तो इस तरह से अकाउंट मैनेजर और रिक्रूटर का काम होता है ऑन द सॉफ्टवेयर। ऑटोमेटिकली है सब कुछ, आप पाइपलाइन कर रहे हो, अकाउंट मैनेजर को इन्फॉर्मेशन जा रहा है, अकाउंट मैनेजर कोई रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन जा रहा है। कुछ बोल रहे हो आप, सुनिए।
ओके, क्लियर है अभी तक? यस ओके, सर। ठीक है। तो अब सेंड टू क्लाइंट हो गया। अब क्या होगा, क्लाइंट को भेजने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्लाइंट उस रिज्यूमे को देखेगा। अब क्लाइंट के ऊपर है, उसको शॉर्टलिस्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। देयर आर मल्टीपल स्टेजेस देयर, राइट। अगर मान लीजिए रिजेक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे देखो, जैसे ही कोई कैंडिडेट पाइपलाइन करते हो तो सिस्टम एक आईडी जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड पाइपलाइन आईडी। यहीं से इसका स्टेज मैनेज करते हैं। अगर मान लीजिए एक कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया तो यहीं पे हम पाइपलाइन आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको एडिट कर देंगे। ये पेंसिल आइकन हमेशा एडिट का बटन होता है और यहाँ पे क्लाइंट रिजेक्टेड करके सेव कर देंगे। तो आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे ए स्टार पे पता रहेगा कि कैंडिडेट हमारा रिजेक्ट हो गया, राइट। अगर शॉर्टलिस्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लाइंट शॉर्टलिस्ट करके सेव कर देंगे। तो जैसे ही सेव करोगे आपका भी कैंडिडेट का स्टेज शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि ये पेज पहले से खुला हुआ था। अगर आप पाइपलाइन में आओगे तो देखोगे क्लाइंट शॉर्टलिस्टेड हो गया। तो ये याद रहेगा, आपके आपके पास मल्टीपल पाइपलाइन कैंडिडेट है, मल्टीपल रिक्वायरमेंट है, राइट। लेकिन कौन सा शॉर्टलिस्ट हो रहा है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, ये स्टेज से ही पता चलता है और ये स्टेज आपको अपडेट करने, राइट। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है आपके कैंडिडेट के फीडबैक, जैसे आपको पता है ना कि 20 कैंडिडेट आपने मान लिया पाइपलाइन करा हुआ है, कौन सा शॉर्टलिस्ट हुआ, कौन सा रिजेक्ट हुआ है, तो आपको करना है, इस स्टेज को अपडेट करना है। देन यू विल हैव द इंफॉर्मेशन कि हमारा कैंडिडेट रिजेक्टेड है और शॉर्टलिस्टेड है। अच्छा, आपको रिपोर्ट कैसे काम करेगा, पाइपलाइन रिपोर्ट। यहाँ पे आपके पास एक बढ़िया रिपोर्ट भी है, ये देखो सर्च फिल्टर है। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। से एग्जांपल, यू आर वर्किंग विथ मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स, राइट। और आपको रिपोर्ट देखना है कि हमारे जैसे इक्विटी ब्रोकिंग, आपके एज ए रिक्रूटर हमने बहुत सारे रिक्वायरमेंट पे काम करा है, बट हमें रिपोर्ट निकल रहा है कि हमने इक्विटी ब्रोकिंग पे कौन कौन से कैंडिडेट पाइपलाइन करे, उसका क्या स्टेज है। तो यहाँ सिंपल है, रिक्वायरमेंट टाइटल कॉपी करके यहाँ पे डाल दो और सर्च कर लोगे तो यू विल गेट द ऑल द पाइपलाइन ऑफ इक्विटी ब्रोकिंग। देखो हमें बस सिंगल एक सर्च मैंने डाला और रिक्वायरमेंट टाइटल डाल के हमारे पास आ गए कि ये 4 कैंडिडेट हमने पाइपलाइन करा था, जिसमें एक कैंडिडेट क्या है, अकाउंट मैनेजर ने रिजेक्ट करा। एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट पाइपलाइन पे ही है, क्लाइंट को गया ही नहीं है। और एक कैंडिडेट अभी जो हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया फॉर ट्रेनिंग पर्पज, सोनू ज्योतिष, तो ये शॉर्टलिस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहीं पे आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है। इसको आप चाहो तो एक्सेल में डाउनलोड करना, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करोगे तो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन एक्सेल में भी आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, देखो एक्सपोर्ट टू एक्सेल करोगे, सिंपल क्लिक, और आपका रिपोर्ट आ गया। देखो ये पाइपलाइन, कैन यू सी इट? ओके, आप देखो एक्सपोर्ट टू एक्सेल आ गया होगा। मैं न्यू शेयर कर रहा हूँ, ये देखो ये एक्सेल। तो हमने वहां पे फिल्टर डाला कि हमने इक्विटी ब्रोकिंग के लिए क्या क्या पाइपलाइन है हमारा। ये एक्सेल में कितना बढ़िया रिपोर्ट, विद इन ए सिंगल क्लिक हम एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम अपने कैंडिडेट, अपने रिक्वायरमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कैंडिडेट किस किस रिक्वायरमेंट पे पाइपलाइन है, एंड विद इन ए सिंगल सेकेंड। तो आपको अलग से कोई एक्सेल मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ये तो था पाइपलाइन। अब एक कैंडिडेट, अभी तक समझ में आया? अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो हमारे से। लग रहा है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है चीजें, कोई कुछ यस पूछ ही सर। नहीं रहे। ओके। ओके, तो ये रिपोर्ट आपका बड़ा बढ़िया काम करेगा। आप यहाँ पे क्लाइंट वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हो, स्टेज वाइज भी निकाल सकते हो। मैं आपको एक अच्छी आदत बताऊं, आपको आपको क्या करना चाहिए, हर एक मंडे को देखो आप क्या करते हो, आप कोई कैंडिडेट पाइपलाइन करते हो, शॉर्टलिस्ट करते हो, तो उसमें आपका एफर्ट जाता है, दैट इज योर जॉब, राइट। अगर वो टाइमली क्लाइंट को नहीं जाए तो आपका एफर्ट वेस्ट होगा, राइट। और हो सकता है, चांसेस ये है कि क्लाइंट को कोई और इसके इस ड्यूरेशन में अच्छे से भी मिल गया तो शॉर्टलिस्ट करके क्लोज भी कर देगा। तो आपका समझो कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस होता है अगर कहीं टाइमली चीजें ना हो तो, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एवरी मंडे आप यहाँ से एक फिल्टर पाइपलाइन रिपोर्ट से एक फिल्टर कर लो, एडेड टू पाइपलाइन करके। यहाँ पे देखो स्टेज है एडेड टू पाइपलाइन, यहाँ पे करके अगर सर्च करोगे तो आपको सिस्टम फिल्टर करके दे देगा कि आपके कितने पाइपलाइन है जो एडेड टू पाइपलाइन है, क्लाइंट को गए ही नहीं इसी भी, और इसको एक्सपोर्ट कर लो
और अकाउंट मैनेजर को भेज दो कि सर दीज आर माई पाइपलाइंस, और जो अभी तक क्लाइंट को नहीं गए हैं प्लीज इफ यू कैन शेयर, राइट। तो आप ये स्मार्ट तरीका अपना सकते हो। सप्ताह में एक दिन मंडे मॉर्निंग में फिल्टर कर लो अपने एडेड टू पाइपलाइन वाले कैंडिडेट को। क्या होता है कि एक बार अकाउंट मैनेजर को रह जाता है, भूल जाता है, या एक दिन डिले हो गया, 2 दिन डिले हो गया, तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा, क्लाइंट के पास रिज्यूमे जाने के बाद फीडबैक लेना भी इम्पोर्टेंट, राइट। कि अगर हमें फीडबैक ही नहीं मिल रहा है एक सप्ताह तक, तो वो भी वेस्टेज है, मतलब हमारे एफर्ट वेस्टेज है। तो उस केस में आप सेंड टू क्लाइंट वाले कैंडिडेट को भी सर्च कर सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से कैंडिडेट सेंड टू क्लाइंट है। सेंड टू क्लाइंट मतलब क्लाइंट को गया बट क्लाइंट ने फीडबैक ही नहीं दिया अभी तक, या तो रिजेक्ट कर दे, या डुप्लीकेट कर दे, या शॉर्टलिस्ट कर दे, कुछ तो करे। तो आप ए रिपोर्ट भी निकाल सकते हो एवरी मंडे। अगर ये 2 रिपोर्ट निकाल लो और उसको ट्रैक रखो ना कि किसका हमारा फीडबैक आया है, किसका नहीं आया है, कौन से कैंडिडेट हमारे क्लाइंट को गए हैं नहीं गए हैं, तो आपका टाइमली चलता रहेगा। ओके, अब आते हैं अगले स्टेज पे। अगला स्टेज क्या है हमारा? अब अभी हमने एक कैंडिडेट को जैसे पाइपलाइन करा था, एक कैंडिडेट सोनू ज्योतिष को, और क्लाइंट ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद क्या होगा, क्लाइंट एक इंटरव्यू का डेट टाइम देगा कि आप इस दिन कैंडिडेट का इंटरव्यू करा दो। तो आपको कोऑर्डिनेशन करते हो आप। तो इंटरव्यू सिस्टम पे कैसे कराते हैं? तो इंटरव्यू कराने के लिए हम पाइपलाइन आईडी पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन सोनू ज्योतिष, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है शेड्यूल इंटरव्यू का। तो नीड टू क्लिक ऑन शेड्यूल इंटरव्यू, और यहाँ पे मोड ऑफ इंटरव्यू है कि इन पर्सन करा रहे हो, टेलीफोनिक करा रहे हो, ऑनलाइन करा रहे हो। तो मान लीजिए जैसा भी है, 3 मेथड होते हैं इंटरव्यू के। इन पर्सन समझते हो, मतलब क्लाइंट प्लेस पे जाके फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोनिक और ऑनलाइन। तो मान लीजिए इन पर्सन करवा रहे हैं, आप सेलेक्ट करोगे इंटरव्यू डेट एंड टाइम, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि किस डेट में इंटरव्यू करवा रहे हो। से सपोज क्लाइंट इज टेकिंग इंटरव्यू ऑन 16th, तो यहाँ पे 16th का डेट एंड टाइम ले लिया एंड क्लिक ऑन शेड्यूल इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, सिस्टम ने कैप्चर कर लिया सारे इंफॉर्मेशन। और क्या होगा, once system capture the information, आपका एक कैंडिडेट आगे जंप हो जाएगा इन इंटरव्यू टैब। अगर मैं नाउ इफ यू सी इंटरव्यू अरेंज करने के बाद, तो एक कैंडिडेट देखो सोनू ज्योतिष इंटरव्यू में आ गए। तो इंटरव्यू इज द अनदर टैब फॉर यू, जहाँ पे सारे आपके इंटरव्यूड कैंडिडेट होंगे। मानस आप म्यूट पे कर लोगे क्या? बैकग्राउंड में काफी नॉइज आ रहे हैं आपके। क्या चीज? मानस कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? तो इंटरव्यू इज द सेपरेट टाइप जहां पे आपके सारे इंटरव्यूड कैंडिडेट होगा, और आप इजिली ट्रैक कर सकते हो कि विच कैंडिडेट इज इंटरव्यू सक्सेस, विच कैंडिडेट इज रिजेक्टेड, आपने किस किस कैंडिडेट का इंटरव्यू अरेंज करें, राइट। तो ट्रैकिंग ऑफ योर इंटरव्यूड कैंडिडेट इज अगेन इजी। अगर कल को सोनू ज्योतिष मान लीजिए हमने इंटरव्यू अरेंज करा, तो ये तो यहाँ है ही शॉर्टलिस्टेड। शॉर्टलिस्ट होने के बाद हमने इंटरव्यू करा दिया सोनू ज्योतिष का, और सोनू ज्योतिष का इंटरव्यू में जो भी स्टेज होता है, हो सकता है सेकेंड राउंड कराना पड़े, हो सकता है फर्स्ट राउंड में ही इसको ऑफर मिल जाए, इंटरव्यू सक्सेस, तो हम इंटरव्यू का स्टेज हम इंटरव्यू पे ही अपडेट करेंगे। You need to click on the interview ID to update the interview stage and click on edit, और यहाँ पे देखो इंटरव्यू स्टेज है। बाकी आप यहीं से आप उसके कैंडिडेट का इंटरव्यू स्टेज आप अपडेट करेंगे। जैसे एक कैंडिडेट मान लीजिए सेकेंड राउंड कराना है, तो सेकेंड राउंड करा सकते हो, फाइनल राउंड करा सकते हो, इंटरव्यू सक्सेस करा सकते हो। अगर सक्सेस हो गया मान लीजिए इंटरव्यू, तो यू जस्ट सेलेक्ट इंटरव्यू सक्सेस। अगर ड्रॉप आउट इंटरव्यू में हो गया या इंटरव्यू फेल्ड हो गया, so these are the possibility after interview, right? So accordingly you need to select the stage. You have also option to feedback, record the feedback of the client feedback, candidate feedback. So if anything you have feedback, you can update for your purpose, and you can update it. And this is the on A star, everywhere you will find this icon, floppy icon and cancel icon. Basically this is the save button and cancel button, right? So you can save it. So you have arranged the interview of the candidate. Now you can see कि यहाँ पे इंटरव्यू सक्सेस हो गया कैंडिडेट का। यू कैन इजिली ट्रैक बाय क्लिकिंग ऑन इंटरव्यू कि हमारे कौन से कैंडिडेट का इंटरव्यू सक्सेस हो गया, फेल्ड हो गया, या अरेंज है। तो आप ऑल योर इंटरव्यू कैंडिडेट विल डिस्प्ले हियर। द नेक्स्ट स्टेप इज, अगर सक्सेस हुआ तो क्लाइंट उसको ऑफर देगा। तो ऑफर इज द स्टेज।
ऑफर आपको करना नहीं है बेसिकली, ऑफर विल बी रोल आउट बाय द अकाउंट मैनेजर। अगर किसी कैंडिडेट को, आपके किसी कैंडिडेट को ऑफर होता है तो अकाउंट मैनेजर उसको ऑफर में डाल देंगे, क्योंकि ऑफर में काफी सारे बिलिंग डिटेल्स डालने होते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ऑल। तो अकाउंट मैनेजर आपके वो कैंडिडेट को ऑफर में मूव कर देंगे। अब जैसे ही उस कैंडिडेट को ऑफर में मूव करेंगे तो आपका एक कैंडिडेट यहाँ पे ऑफर में दिख जाएगा, राइट। यहाँ पे ऑफर में दिख जाएगा, उसमें आपको ऑफर आईडी दिख जाएगा, कैंडिडेट का डिटेल्स। जैसे मैं इस कैंडिडेट को ऑफर कर ही देता हूँ, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। तो कैसे दिखेगा, जैसे अलीसा को, ये कैंडिडेट है सोनू जगदीश, इंटरव्यू पे है। देखो ये सोनू जगदीश, मैं इसको ऑफर रोल आउट करूंगा। तो आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ देखने के लिए है, मैं एक एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ। मैं इसको ऑफर रोल आउट करता हूँ यहाँ पे, जैसे ऑफर गिवन, बिलिंग टाइप हमने वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए इसको 4 लाख का ऑफर मिला, 4 लाख का ऑफर मिला। टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मान लीजिए कैंडिडेट 1 अप्रैल को ज्वाइन करेगा। रेट हम 8.33 पे काम कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट मैनेजर करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑफर में। इंटरव्यू कन्वर्टेड टू ऑफर सक्सेसफुली, ये ऑफर कन्वर्ट कर दिया हमने। यहीं पे हम फी शेयर डाल देंगे, जैसे आपने अचीव करा है इसको, ये आपका कैंडिडेट है सपोज। तो हम आपको इसमें शेयर दे देंगे कि जो भी परसेंटेज ऑफ शेयर जाएगा इस बिलिंग अमाउंट का। ऑब्वियसली यहाँ पे सब लोगों का टारगेट होता है और अचीवमेंट यही बिलिंग फिगर ही होता है। मान लीजिए हमने अलीसा की आईडी से लॉगिन किया था और मान लीजिए अलीसा का कैंडिडेट था, तो आई विल गिव शेयर टू अलीसा फॉर दिस कैंडिडेट। मान लीजिए अलीसा को हमने 100% दे दिया, जो भी बिलिंग होगा इस कैंडिडेट को, तो अलीसा विल गेट द शेयर ऑफ 100%। नाउ हाउ सिस्टम विल रिएक्ट, जब अलीसा अपने आईडी पे खोलेगी तो ये ऑफर उसको करना नहीं है, बट अगर अकाउंट मैनेजर ने ऑफर करा हुआ है और वो लॉगिन करेगी, रिफ्रेश करेगी, मतलब लॉगिन करना है बस, तो देखो ऑफर में उसके कैंडिडेट सोनू मैंने बनाया कहाँ पे, अपने आईडी पे। अकाउंट मैनेजर ने ऑफर क्रिएट करा, बट अगर कोई कैंडिडेट अलीसा का क्रिएट होता है, ऑफर मिलता है उसको, तो यहाँ पे उसको दिख जाएंगे कि हमारे कैंडिडेट, एक कैंडिडेट सोनू जगदीश गॉट ऑफर्ड। वो ऑफर आईडी पे क्लिक करके ऑफर का डिटेल्स देख सकती है। एज ए यूजर यू कैन ऑल्सो सी द डिटेल्स। तो यहाँ पे बिलिंग वैल्यू दिख जाएगा, 4 लाख का ऑफर हुआ, 8.33 बिलिंग है, इतना बिलिंग अमाउंट है, 33,000 बिलिंग आएगा। हमने जो शेयर दिया हुआ है, इफ यू सी द शेयर, तो इस शेयर भी आ रहा है कि 100% जो बिलिंग अमाउंट है 33,000 आपके खाते में गया हुआ है। अब जो आपका बिलिंग है, दैट इज दिस इज योर अचीवमेंट ऑफ 33,320। तो यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिल जाती है आपको बिलिंग की, कि कौन सा कैंडिडेट क्लोज हो रहा है, किस सीटीसी पे क्लोज हो रहा है, कितना आपको इसमें फी शेयर मिल रहा है। तो यू विल गेट ऑल द क्लैरिटी ओवर हियर, राइट। तो ऑफर है कुछ नथिंग बट दिस इज फॉर व्यू पर्पस। आप इसमें कुछ एडिट मॉडिफाई कुछ नहीं ऑप्शन मिलेगा, आप इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। आप देख सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप बता सकते हो कि इसमें ये नहीं, ये होना चाहिए, तो रेक्टिफाई किया जा सकता है, बट आपको सिर्फ ये देखने के लिए। प्लेसमेंट इज नथिंग बट ज्वाइनिंग, जब जिस दिन कैंडिडेट ज्वाइन करेगा उस दिन हम लोग कैंडिडेट को ऑफर से मूव करके प्लेसमेंट में डाल देते हैं। मीन्स वी हैव प्लेस्ड द कैंडिडेट, कैंडिडेट ज्वाइन हो गया होता है और हम लोग बिल रेज कर देते हैं। तो बिल रेज जब करते हैं तो ये आपका कैंडिडेट आगे प्लेसमेंट में दिख जाएगा। सेम इसी तरीके से ऑफर जैसे दिख रहा है वैसे प्लेसमेंट में यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको दिख जाएगा कि किस इनवॉइस नंबर से हमने इनवॉइस रेज करा है, और वो पूरी डिटेल्स दिख जाएगा। फी शेयर इज द कंसोलिडेटेड थिंग, यहाँ पे सारे फी शेयर आपको दिख जाएंगे कि आपको किस किस ऑफर पे कितना कितना फी शेयर आपको मिल रहा है। तो ये कंसोलिडेटेड फी शेयर है, जैसे अभी एक ऑफर पे 100% मिला, तो यहाँ पे ये अमाउंट दिख रहा है। कोई नेक्स्ट ऑफर पे कोई और बिलिंग मिलेगा तो जिस पे जहाँ पे भी आपकी अचीवमेंट आएगी, मतलब बिलिंग आएगी, वहां पे ऐड होगा और यहाँ पे आपका वो एक जगह कंसोलिडेट दिखता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर, हाउ यू कैन मैनेज योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नाउ आई एम ओपन टू टेक एनी ऑफ द क्वेश्चन इफ यू हैव। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।